मैं ये बोलती हूँ कि लाइफ में अपना एक गोल होना चाहिए एंड एम है तो एम फॉर द बेस्ट। ये 6 मंथ्स आपकी लाइफ के बहुत क्रूशियल होते हैं, ये आपका करियर आगे डिसाइड कर सकते हैं। तो सब छोड़ दो, अपने लिए कर लो, ये 6 महीने मेहनत कर लो, लाइफ में बहुत आगे बढ़ने को मिलेगा। एंड सर इस चीज में ना मैं ऑनेस्ट चीज बोलती हूँ, मैंने आर्टिकलशिप में भी ना अपने टाइमिंग आवर्स बहुत कंसिस्टेंट रखे हैं ऑफिस के। मैं अपना काम दिन में कर लेती थी और बोल देती थी 7:30 8 बजे कि हो गया है मेरा, मैंने ये कर दिया है, बचा हुआ कल करूंगी। नो मीन्स अ नो। Hello everyone, and I have with you CA Deshna Jain, AIR 6 of CA Final November 24 exams. And Deshna has also been a rank holder in her CA Inter. And uh, many congratulations, Deshna, for this fabulous achievement. थैंक यू सो मच सर। Thank you. And just a small thing, Deshna has been with us from her CA Inter, and we have got the privilege to see her journey and see how well she has grown upon and improvised in her CA final as well. So, Deshna, share with us, what did you do in CA final, which was so different that you could kind of crack a CA final AIR 6? Yes, sir. So definitely the different thing was my focus, my hard work. I tried to take my lectures diligently with discipline. I completed my lectures in November 23 itself with one revisions. So what I used to do is, I used to watch your lectures. Then daily I used to just remember what you have told in the lecture, and just do my homework daily so that I can keep pace with what you are teaching. And then once I completed your lectures, then I give 15-20 days to that subject, and I do a thorough revision. So this was So my. that is uninterrupted. You don't Yes. do any other lecture reviewing or anything during that time frame. Oh, no, sir. I just give 20 days to that particular subject so that I can complete it to the whole again and I can do my important markings. Okay. So that is a very unique thing, I would say, because people generally वो struggle करते lecture ही finish करने को. So you did a very good job. But did that really help you in your retention? Because people usually forget what they have studied earlier. Yes, sir. So this helped a lot in retaining things, because mostly what people do now, they just see the lectures and then they skip their self-study part. So any which ways they won't be able to retain anything. But at least when I used to do my revisions, so I used to make important markings, as I said, what is important, which question is important. So that helped me to retain it. And when I used to saw your revision lectures in my leave period, so that thing clicked me. Yes sir, सर ने तो ये एग्जाम्पल बताया था क्लास में, इसका ये चीज होता है, तो वो चीज आप जब कंटिन्यू किसी चीज को रिवाइज करते हो तो वो ऑफ कोर्स रिटेन रहेगी. सो आई Correct. फोकस्ड ऑन क्वालिटी रिविजन्स. Which is very good. So ideally, when someone is planning, they should always ensure that they're planning their lectures, and if possible, keep around 15-20 days, depending on the size of the subject, for doing a quick revision so यस. that things settle in their mind. यस, बिकॉज 2 years का पीरियड हो जाता है तो ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल होता है रिटेन करना. तो इससे अगर 30-40% भी रिटेन हो रहा है ना, तो फिर स्टडी लीव में आप उसको 100% तक पहुंचा सकते हो. Correct. And how did you plan your day in general while doing your articleship? I assume you're doing it from a Big Four. यस सर, फ्रॉम केपीएमजी. सो ऑफ कोर्स Yeah. वर्क प्रेशर्स भी रहते थे, ऑडिट पीरियड पीक पे भी होता था. बट so what used to be my approach now, I used to study at least 2 hours in the morning and 1.5 to 2 hours in the evening, so that I do not get exhausted at one point only. Because Okay. if I'll wake up late in the morning, I'll go to office, then I'll get tired the whole day in the office, and फिर वो lectures efficiently नहीं हो पाते हैं. तो मैं सुबह fresh mind 2 hours देती थी, रात को 2 hours देती थी, तो मेरा 4.5 hours ऐसे कंप्लीट हो जाता था डेली That का. is consistently throughout your journey you were यस doing सर. by and large. यस सर, मेरा ना एक डे का शेड्यूल होता था, वो जब तक पूरा नहीं होगा मैं नहीं सोऊंगी. Is it? That's brilliant discipline. But यस. usually in Big Four, by the time people come back, they don't have that, what do you say, energy left to do एनर्जी. 1.5, 2, which is brilliant on a consistent basis. So how did you cope up the evening one? Morning one I can understand, but evening wala slot kaise nikala?
सर कभी ऐसा मतलब ऑडिट पीरियड पूरे साल तो नहीं ही होता है इतना पीक पे, तो जब पीक पीरियड आता था तो मैं मॉर्निंग आवर्स अपने बढ़ा देती थी और इवनिंग आवर्स कम कर देती थी। तो ऐसा होता था ना, इवनिंग में आई मैं सोचती थी कि यार एक ही आवर्स का लेक्चर देखना है तो जल्दी जल्दी देख के भी हो जाएगा। जब मैं सोचूं अगर मुझे 3 घंटे का आके देखना है तो वो नहीं हो पाता है, सोचती हूँ अरे, कर लूंगी तो वो चीज skip हो दैट्स जाती है। वो that's a good way to, if you just have to do 1 hour, so yes, you can definitely manage that. एंड सर इस चीज में ना मैं ऑनेस्ट चीज बोलती हूँ, मैंने आर्टिकलशिप में भी ना अपने टाइमिंग आवर्स बहुत कंसिस्टेंट रखे हैं ऑफिस के। मैं अपना काम दिन में कर लेती थी और बोल देती थी 7:30 8 बजे कि हो गया है मेरा, मैंने ये कर दिया है, बचा हुआ कल करूंगी। नो मीन्स अ नो। बिकॉज एट वन पॉइंट पढ़ाई भी देखनी पड़ती है, सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में विद द रैंक मेरा गोल था। तो अगर मैं ऑफिस में नहीं बोलूंगी तो कोई मेरे लिए स्टैंड नहीं लेगा, मुझे खुद को ही बोलना पड़ेगा। Correct. So you had manifested and you had planned for a rank while preparing as well. Yes, sir. In CA Inter, I also planned, but that could, AIR 1 I planned both times, but that could not happen both times. No, So, no, that's fine. I'm telling you the fact that you planned about it ना. yes, आप अगर sir. प्लान ही करोगे सिर्फ पासिंग का, then maybe you will not even reach there. I mean, but Yes, if you plan very well, right? So you can obviously go so close to that goal, right? And you have bridged the gap. यानी 41 से 6 पे तो आप आ गए, right? yes, So sir. it's a very good thing that you planned and you worked towards that planned as well. और सिर्फ मैं ये बोलती हूँ कि लाइफ में अपना एक गोल होना चाहिए, एंड एम है तो एम फॉर द बेस्ट। ठीक है, अगर Hmm. नहीं मिला तो वो फिर कहीं आप में मेहनत में कमी है या आपकी फिर किस्मत पे छोड़ दो, बट एम फॉर द बेस्ट। अगर आप पास होने के लिए एम करोगे तो पास होना भी मुश्किल हो जाएगा। एम फॉर द बेस्ट तो पास तो हो ही जाओगे। Correct, correct. And I would just like to add on that. Definitely, you aim for the best, but at the same time, you work towards that aim यस, as well. A lot of people डेफिनेटली। aim everything, but then when it comes to actually एंड burning that midnight oil for that aim, उधर किधर किधर अपने को नेटफ्लिक्स इंस्टाग्राम सब बीच में आ जाते हैं, राइट? हाँ सर, मैं भी देखती थी, मैंने स्टडी लीव में भी ऐसे नेटफ्लिक्स तो बंद कर दिया था, बट इंस्टाग्राम वगैरह मेरा ओपन रहता था। बट मेरे लिए वो चीज़ एडिक्शन नहीं थी, मेरे को अपना टाइम फ्रेम पता था कि मुझे इस टाइम पे इतना मिनट ही चलाना है। तो मैं उस चीज़ में काफ़ी डिसिप्लिन फोकस्ड रहती थी। तो मेरे लिए वो चीज़ एडिक्शन नहीं थी, बट जिनके लिए होती है तो बंद कर देना चाहिए। Correct, correct. So you used to use timers or something, or you used to सर सेल्फ कंट्रोल। self control. Okay, यस। that is a little difficult actually for a lot of people, including myself. वो कभी कभार बैठ बैठ जाता तो समझ में नहीं आता, राइट? कितना टाइम निकल गया है वो। हाँ, बट मैंने स्टार्टिंग से अपना मैं सेल्फ कंट्रोल केवल इस चीज में नहीं, बाकी चीजों में भी सेल्फ कंट्रोल पे फोकस ज्यादा करती हूँ तो मेरे से संभल जाता है। That's very nice, very nice. And tell us, how did you work around your FR? Did you do pen and paper practice? Did you write tests? How did you score so well? ओके, सो सर फर्स्ट टाइम जब एफआर का लेक्चर लिया था, आई यूज टू राइट एवरीथिंग, आपने जो होमवर्क दिया है मैं वो लिखूंगी। जब मेरा फिर फर्स्ट रिवीजन जब मैं लेक्चर्स के बाद लेती थी उसमें मैं पूरा ओरल ही करती थी, उसको कैलकुलेटर पे कर लेती थी। फिर जब स्टडी लीव वाला पीरियड आया तो मैंने फर्स्ट रिवीजन मैंने कैलकुलेटर पे करा, सेकंड रिवीजन मैंने रफ में लिख के करा, ताकि मैं क्वेश्चन सेलेक्ट कर पाऊँ कि मुझे कौन सा करना है। फिर वहां से क्वेश्चन सेलेक्ट करे कौन से थर्ड रिवीजन में मुझे क्वेश्चंस देखने हैं। तो एक मैं चैप्टर के स्टार्टिंग में मेन क्वेश्चंस लिख देती थी या फिर इंडेक्स में कि ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मुझे देखने हैं। तो जब थर्ड रिवीजन फिर आता था तो वो वाले क्वेश्चंस करती थी और उनमें से भी जो मुझे आ रहा है उसको कट कर देती थी। तो ऐसे जाके वो जब मेरा एग्जाम 1.5 डेज बचता है तो उसके लिए मेरे पास एक कवरेज था कि हाँ मेरे को ये देखना है। पूरा कोर्स तो नहीं ही देख पाता है कोई भी, इतना ज्यादा होता है, तो सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो 1.5 डेज के लिए। Okay. आपने बोला मैं फर्स्ट रिवीजन, आपने बहुत सारे रिविजन्स बोल दिए. How many revisions did you actually do? सर 5 तो हो गए होंगे एंड 6 वाज माय एग्जाम वाला। 5 revisions, and that is across subjects or for selected subjects? नो नो, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। So were there phases where you would probably burn out, saying you're doing the same thing, and did you maintain that fire in the belly even at the end? यस सर, यस सर। सर सबसे इम्पोर्टेंट ना वो लास्ट के 2 महीने ही होते हैं, अगर वहां पे आप
थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए या वहां पे लो पॉइंट पे आ गए ना, तो सब मेहनत खराब हो जाती है। तो मैं अपने स्टडी आवर्स उतने कंसिस्टेंट रखती थी कि मेरे को बाकी चीजों के लिए भी ब्रेक मिल जाए, कहीं ना कहीं मेरा माइंड एग्जॉस्ट ना हो। और मतलब मैंने ये 6 महीने कंटिन्यू पढ़ाई करी, मैंने एक भी दिन का ब्रेक नहीं लिया था। Is it? यस, Wow, बट मैं अपने 6 months. सॉरी, You took study leave of 6 months? यस सर, मेरा 5 मंथ्स था, बट मैंने थोड़ा ऑफिस में जब वर्क करा था तो कॉम्प ऑफ मिल गया था मुझे। Okay, okay, okay. And you studied every day? यस एवरी डे, बट मैं अपने स्टडी आवर्स ना, मैं ऐसा नहीं रखती थी कि मैं स्टार्टिंग में 14-15 आवर्स तक जा रही हूँ कि मैं एग्जॉस्ट हो जाऊँ। तो मैं स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स वॉज माई 10 to 12 आवर्स होते थे, फिर उसको ग्रेजुअली मैं इंक्रीज करती गई ताकि मेरा भी माइंड एग्जॉस्ट नहीं हो, क्योंकि एक चीज आप कंटिन्यू पढ़ोगे तो लगता है यार सब तो आता है, कितनी बार Hmm. पढ़े उस चीज को। Hmm. तो वो चीज मेरे को वो नहीं चाहिए था, तो काफी कंसिस्टेंट रखा मैंने। Okay, that's very nice. And did you also do MCQs separately? Yes, sir. ICI MCQs I did. Your MCQ book I purchased. मतलब हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा MCQs देखे थे, सारे नहीं हो पाए थे क्योंकि Hmm. ICI का भी करा था मैंने। Okay. यस सर, Would you तो advise people to go through MCQs in general, ICI, BOS MCQs at least? यस सर, डेफिनेटली आइडिया लगता है किस टाइप के MCQs आते हैं। अगर आप एग्जाम में जाओगे बिना पढ़े MCQs, तो एक सरप्राइज मतलब इट विल कम एज अ सरप्राइज टू यू कि किस टाइप की केस स्टडीज आती है। तो Okay. एटलीस्ट वंस और ट्वाइस तो आपको प्रैक्टिस कर ही लेना चाहिए। Okay. And when you were preparing, would you keep your own separate notes or did you refer the faculty material or institute material? What would you do? सर मैंने आपका जो नोट्स था, Hmm. कोई भी सब्जेक्ट ले लो, जो टीचर्स के नोट्स होते हैं वो मैं पढ़ती थी। उसके बाद आई यूज टू गो टू ICI मटेरियल, मेरे फर्स्ट रिवीजन में जो स्टडी पीरियड में था। मैं कंपेयर कर लेती थी कि सारा मटेरियल मेरा कवर है या नहीं है, ICI का क्वेश्चन सारे कवर है, टॉपिक सारे कवर है या नहीं। तो सर जो आप लोगों की बुक्स रहती, मैं उसी में अपने मार्किंग्स, अपने स्टिकी नोट्स लगा लेती थी। Okay. So there was no separate notes or नो, anything to be नो prepared otherwise. And did you also watch revision videos, etc. regularly? सर फर्स्ट रिवीजन के टाइम देखे थे। That's it. After that, you will focus on your self-preparation यस only. सर, And यस how सर। about your tests? How many tests would you write? सर टेस्ट मैंने ICI के 2 मॉक्स और RTPs लिखे थे बस। Okay. एंड RTP also यस यस, RTPs भी मैं खुद कर लेती थी। the एंड latest ones. हाँ हाँ, एंड ऐसा होता था कि जो पास्ट पेपर्स हैं, जो माई बिकॉज मटेरियल थोड़ा सा तो ओल्ड हो ही जाता है, क्योंकि, अगर मैंने 2022 में लेक्चर दी तो उसके बाद के नहीं होंगे। तो मैं वो पेपर्स भी अपने फर्स्ट रिवीजन में ही एक बार कर लेती थी सॉल्व। Okay. Okay. And how did you manage IBS? ओके, सो IBS के लिए मैंने अपना जो लास्ट के थर्ड थर्ड मंथ होता है एग्जाम का, सो लास्ट थर्ड मंथ में मैंने 6 डेज दिए थे IBS को। मैंने अतुल अग्रवाल सर की बुक मंगवाई थी, मैं उसमें क्वेश्चंस जो केस स्टडीज होती थी, जस्ट मुझे एक आइडिया लग जाए कि किस टाइप की आती है, बिकॉज मे वाले पेपर के आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते थे IBS Right. में। तो आईसी जो सर की केस स्टडीज थी, मैंने वो कोशिश करी कि मैं सॉल्व करूं किस टाइप का पेपर पैटर्न रहेगा। तो वो चीज़ मुझे एग्जाम में भी बहुत हेल्प करी है कि मुझे पता है कि कैसे ढूंढना है। अदरवाइज व्हाट पीपल डू ना, दे डू नॉट गिव टाइम टू IBS, वो लास्ट के 1.5 दिन में देखते हैं। बट वो Hmm. फिर बहुत केओस क्रिएट हो जाता है कि आपको किस टाइप का मटेरियल ले जाना है, किस किस बुक से देखना है, क्योंकि 4 आवर्स ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा है, बट नहीं होते हैं। Everyone found it very difficult to manage it in 4 hours as well. यस सर, मतलब बहुत स्पीड से लिखना पड़ता है। मुझे भी लगा था कि आज तो पेपर छूट जाएगा IBS में, बट आई मेंटेन माई स्पीड, आई इंक्रीज। एक तो मैं पूरा पेपर एक साथ नहीं पढ़ती हूँ कि, क्योंकि Okay. वो 20 मिनट्स ले जाएगा IBS का, पूरा पढ़ने बैठूंगी तो मैं एक केस स्टडी पढ़ती थी, मुझे आता था सॉल्व कर ली, फिर नेक्स्ट पे गए, नहीं आया तो छोड़ दी। But then when you, for other subjects, excluding IBS, you would use your 15 minutes. यस यस सर, उस उसमें आप कैसे selectively would you decide the pattern? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं देखती नहीं थी बिकॉज करना है। उसके बाद मैं सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेती थी कि वो मुझे आ रहा है या नहीं, बिकॉज सिक्स्थ में यूजुअली थियोरीज का भी होता है या डिफरेंट टाइप का होता है, तो मैं वो देख लेती थी। अगर वो नहीं आ रहा है तो बचे हुए करने ही है, वो आ रहा है तो फिर मुझे बाकी देखने पड़ेंगे। Okay, okay, that's interesting. But your flow would be you will start with the solving or you will start with MCQs?
आई यूज टू स्टार्ट विद माई सॉल्विंग पेपर। तो जब मुझे ऐसा लगता था कि स्पीड बहुत हो गई है, हाथ दर्द करने लग गए, तो मैं एमसीक्यू बुक उठा लेती थी, ताकि मुझे थोड़ा सा हैंड्स को भी रेस्ट मिल जाए। बट मेरा बहुत ऐसा होता था कि हाफ आवर मुझे एक क्वेश्चन को देना है, हाफ हाफ आवर करके मैं सबको देती थी। मैं टाइम भी बहुत अपना कंसिस्टेंट रखती थी एग्जाम में। But you could manage to complete all your exam papers. यस सर, मैंने, यस सर, कुछ कोई भी पेपर छोड़ा नहीं है। Okay, that's brilliant. So you would, but if you have not written enough tests, you had that discipline in your mind कि आपको ये time पे, because आप जब भी लिखना चालू करते हो, you want to write so much. By the time you look at the watch, 1 घंटा निकल गया होता है, right? Generally. हाँ, तो सर इसके लिए ना वो मॉक्स जो दिए थे, तो मैं ऐसा करती थी कि मुझे जो मेन पॉइंट्स हाईलाइट करने में वो लिखती थी। स्टोरी लिखना, बीकॉम का एग्जाम तो है नहीं, लोग स्टोरी भी लिखने लग जाते, तो टाइम फिर कैसे बचेगा। You know, I know, I know. Fair enough. मैं बहुत अपना की कंसाइज करके रखती थी कि मुझे इतना ही लिखना है, टाइम फ्रेम है आधा घंटा है इस वाले क्वेश्चन के लिए, उससे ज्यादा 2 मिनट ले लो, 5 मिनट, बट अदरवाइज बाकी पेपर छूट जाएगा। While speaking to you, I can realize that you have done a lot of discipline, a lot of planning, and most importantly, you managed to stick to it. And a lot of it is your self-discipline and not external, right? यस, डेफिनेटली। Yes, yes. Would you like to share something with students before signing off, which probably can help them do something close to what you have achieved? यस सर, तो मैं यही कहूंगी कि एक तो हार्ड वर्क, अपना डिसिप्लिन बहुत रखो। ये 6 मंथ्स आपकी लाइफ के बहुत क्रूशियल होते हैं, ये आपका करियर आगे डिसाइड कर सकते हैं। तो सब छोड़ दो, अपने लिए कर लो, ये 6 महीने मेहनत कर लो, लाइफ में बहुत आगे बढ़ने को मिलेगा। मैं खुद फील कर सकती हूँ कि कितनी अपॉर्चुनिटीज खुल गई है मेरे लिए, जो मुझे नहीं आती अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करती या विदाउट रैंक में पास होती, मुझे नहीं मिलती वो। एंड जो रिस्पेक्ट सबसे मिलती है खुद के लिए भी ना, मैं जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठी थी रिजल्ट के, तो आई विश्ड माई सेल्फ गुड मॉर्निंग सीए देशना जैन। वो Okay. एक वो खुशी बहुत अलग लेवल की होती है। तो बहुत हार्ड वर्क करो कंसिस्टेंटली, और चीजों को प्लान करके रखो कि मुझे इस टाइम फ्रेम में ये करना है। ये चीज बहुत हेल्प करती है। लोग अनप्लान्ड जाते हैं ना, तो वो चीज एक्सटेंड होती जाती है। मैंने अपने रिविजन्स भी काफी कंसिस्टेंट की, मुझे इतने महीने में फर्स्ट रिविजन करना है, इतने दिनों में इस सब्जेक्ट का रिविजन करना है। तो ये चीज थोड़ा सा प्लान करके चलो, तो वो बहुत हेल्प करेगा आपको। But did you look at motivation videos uh, or यस you सर। would have self-discipline only? सर सो ऐसा था कि मैं इतना देखती नहीं थी मोटिवेशनल वीडियोस, बट जब मेरा वीक पॉइंट आया था ना, ये जो 6 मंथ्स की स्टडी ली थी, तो मे वालों का रिजल्ट आया था, तो मुझे ऐसे मोटिवेशन चाहिए था, तो मैंने AIR 1 का वीडियो देखा था। तो मुझे Okay. उससे काफी ऐसे मोटिवेशन मिला कि हाँ, मेरा भी थोड़ा स्टडी पैटर्न ऐसा ही चल रहा है, तो आई एम ऑन द राइट ट्रैक। तो वो Okay. करके मुझे कॉन्फिडेंस और आया। That's good. I really hope that someone who's watching your video now also says the same thing about you, hopefully. हाँ, थैंक यू सर, आई होप सो। Thank you very much, Deshna, for the time and wish you all the very best for everything that you're going to achieve in the future. थैंक यू सो मच सर, Thank you. it was my pleasure talking to you. Same here, same. Thank you, sir.